হেডলাইন্স স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি আৰু ইতিমধ্যে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত ৰাখিছো গুৱাহাটীত যেহেতু উপস্থিত হৈছেহি বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হোৱা চাহ বাগিচা ধন পুৰস্কাৰ মেলাত অংশ লৈছে নিৰ্মলা সীতাৰমণে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাই গৈছো এয়া মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপস্থিত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উপস্থিত আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছো সমন্বয় ধাৰা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো উল্লেখযোগ্য বৰঙণি যুগে যুগে গ্ৰহণ কৰি আহিছে গতিকে সেই মহিলাৰ অন্যতম ৰূপ আমাৰ পৰম শ্ৰদ্ধাৰ কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ ডাঙৰীয়ানী আজি এগৰাকী মহিলাই ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বিশাল উপমহাদেশত আজি বিত্তমন্ত্ৰী দায়িত্ব যিমান নিষ্ঠাৰে পালন কৰিছে যিমান দক্ষতাৰে পালন কৰিছে তাৰ বাবে আমি সকলো তেখেতক লৈ গৌৰৱান্বিত মই তেখেতৰ আন্তৰিকতাৰে পুনৰ অভিনন্দন জনোৱাৰ লগতে আজি এই অনুষ্ঠানত থকাৰ বাবে মই বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো मैं फिर से निर्मला जी आप हमारे बीच आए और हमें उत्साहित किया और हमें जो सहयोग किया इसकी वजह से फिर से असम की जनता की तरफ से मैं बार बार आपको धन्यवाद देते हुए आज এই সভাত উপস্থিত থকা সকলোৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্য সামৰিলো ধন্যবাদ জয় অসম জয় হিন্দ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়লৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো শ্ৰদ্ধা ৰাইজ এতিয়া আমি আমাৰ মূল কাৰ্যসূচী দিশে আগবাঢ়িব ওলাইছো অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ অসম চাহ বাগিচা ধন পুৰস্কাৰ মেলা 2021ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই মঞ্চত আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ হাতেৰে 6 গৰাকী হিতাধিকাৰীক এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব so may I now humbly request our chief guest the honorable union finance minister আমি হিতাধিকাৰীসকলক চেক প্ৰদান কৰাৰ পূৰ্বে আমি আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ বক্তব্য আগবঢ়াবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো To realize the supreme dream of the Honorable Prime Minister to regenerate and transform brand India, the Honorable Finance Minister of our country with her bold initiatives and decisive actions has taken our country to newer heights. Leveraging technology with the edifice of the trinity of Jan Dhan, Aadhaar and mobile, the objective of financial inclusion by using direct benefit transfer to the bank account for beneficiaries has transformed lives for the brother and sisters who are hard-pressed for the basic income needs. We are honored and elated to have you amidst us, ma'am. May I now humbly request Honorable Union Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman to kindly address the gathering. Kindly, ma'am. सबको मेरे नमस्कार असम के वरिष्ठ मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी केंद्र में मंत्री और मेरे साथी श्री रामेश्वर तेली जी असम के वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा जी और असम के वरिष्ठ मंत्रीगण सांसदगण एमएलए और अधिकारीगण आप सबको मेरे नमस्कार मगर मेरे भाषण शुरू करने से पहले आज ये चाह बगीचा धन पुरस्कार मेला में भाग लेने के लिए दूर दराज इलाके से आए हुए मेरे चाय बगीचे से भाइयों बहनों आप सबको मेरा विनम्र नमस्कार पूरे दुनिया सुबह उठ करके पहले अगर एक शब्द बोलता है नींद खुलने के लिए वो है छा।
उस चाय के उत्पादन करने वाले आप सबको हर सुबह पूरे दुनिया याद करती है। और असम के चाय के ऊपर एक ब्रांड वैल्यू भी है, असम टी। इसको याद करते हैं पूरे दुनिया। और मैं शुरुआत में ही उस बात को इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि मेरे बगल बैठे हुए डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा, वो गाना जो हमारे भाई बहन जो बगीचे से आए हुए हैं, वो परंपरागत तरीके से वो नृत्य गाना जो हमें हमारे मन शुरुआत से ही अच्छा सोच विचार के साथ जाना है, इसीलिए अच्छा गाना भी गा रहे हैं। मगर उस गाने में क्या भावना थी और क्या अर्थ था, वो डॉक्टर हिमांता बिस्वा शर्मा ने मुझे बगल में बैठे हुए ट्रांसलेट करके बोल रहे थे। मेरे मन में पीड़ा हुआ, मेरे मन में दुख, एक तरह के दुख। एक विषय बोलने के समय अच्छा लगता है असम टी, मगर वो गाना के अर्थ और भावना सुनने के बाद मन में एकदम पता नहीं एक फीलिंग मुझे मन में आया जो पीड़ाजनक है। क्योंकि गाना का अर्थ क्या है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी मैं आपके सामने जो मैंने समझा उसको बोलना चाहती हूं। सुबह आपके मम्मी जो चाय के काम के लिए पत्ता निकालने के लिए जाएगी, मैं जाऊंगा वो खेती में पानी सही पहुंचाने के लिए, मट्टी में काम करने के लिए। मगर आप बच्ची लोग, लड़की लोग छोटे घर में रहो, मगर कल रात का खाना खा करके, यही है ना, यही है ना गाना के अर्थ, यही है ना। हमारे पूरे दुनिया के सुबह उठ करके गरम चाय पी करके आंख खोलो, नींद से उठ करके आज दिन भर के आपके जो भी काम काज है वो करो। ये करने के लिए जो चाय आप बेचते हो पूरे दुनिया, आपके बच्चे कल रात के खाना खा करके घर में आपके लिए दोबारा इंतजार बैठना, ये हालात बदलना चाहिए। ये हालात बिल्कुल बदलना चाहिए। ये हालात बदलना चाहिए कि आज जिन मजदूर पूरे दुनिया को चाय बेचती है, उनके व्यवस्था ठीक होना चाहिए, घर होना चाहिए, पानी होना चाहिए, आपके बच्चे के सही खाना मिलना चाहिए, समय पर मिलना चाहिए, वो भी फ्रेश खाना मिलना चाहिए, ना कि कल रात की, कल दिन की बचा हुआ खाना। ये मैं एकदम आज मुझे वो गाना सुन करके, ये नहीं है कि चाय बागान में काम करने वाले के हालात पहले से मालूम नहीं था, बिल्कुल मालूम था। मगर समय आज चाय बागान धन पुरस्कार मेला की, जब मन और ध्यान से एक चीफ मिनिस्टर सर्बानंद जी सोनोवाल जैसे हृदय से काम करने वाले, मन से काम करने वाले, दिल से काम करने वाले एक चीफ मिनिस्टर लोगों के हालात समझ करके उनको दो दिलाना है, उसके लिए काम करते हैं। उनके सोच में यही रहता है और उनके रिप्रेजेंटेटिव के नाते मैं बात हल्का सा बोल रही हूं। कामाख्या तासा जो हमारे वरिष्ठ एमपी है, चाय बहान की कहानी मेरे को 2014 से 2014 से लगातार बोल बोल करके कुछ करो दीदी, चाय बागान के लिए कुछ करो। और पल्लव लोचन जी भी
उनके अपने तरीके से याद दिलाते रहते हैं कि क्या है चाय बागान के हालात। पूरे दुनिया में आज इतने सारे डेवलपमेंट हो रही है, क्या हमारे चाय बागान के हक नहीं बनता? क्या हमारे चाय बागान के महिला का हक नहीं बनता? ये सांसद में ये बात बोल करके चाय बागान के हालात के पूरे विषय समझाया गया है। इसीलिए, और इससे पहले 2014 के चुनाव से पहले ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बात बोलते रहते हैं, चाय बागान के लोग के लिए हम कुछ करना चाहिए। उनके हर भाषण में ये बात बोलते हैं, उनके हालात देखो, कुछ करना चाहिए हम। इसीलिए आज प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आप तक पहुंचता है, प्रधानमंत्री आवास योजना आप तक घर लेकर आता है, और अभी भी जितने भी लोग उनका घर नहीं है, ठीक अच्छा सा घर नहीं है, उनको घर भी दिलाता है। और चाय बागान में जो रहते हैं दूर, सिटी से दूर, उनको आयुष्मान भारत के योजना के द्वारा 5 लाख तक 1 साल के अंदर ही जरूरत पड़ते तो इलाज करने का व्यवस्था भी आपको प्रधानमंत्री के आयुष्मान भारत के द्वारा मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर किसी को नहीं मिलता है जरूर बोलिए, क्योंकि आप तक पहुंचाने वाले जिम्मेदारी हमारा है। आयुष्मान भारत के पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सबका है, हम पहुंचाएंगे। मगर इसमें किसी का भी अगर आयुष्मान भारत नहीं मिलता जरूर बोलना, क्योंकि 5 लाख तक पूरे पैसा भरने का आवश्यकता नहीं है, कागज में आपके नाम लिखने का आवश्यकता नहीं है, पेपरलेस इलाज मिलता है। ऐसे हर एक चाय बागान के रहने वाले के छोटे छोटे समस्या को समझ करके प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, ये करो, ये करो, ये करो। पिछले फरवरी को, उस समय भी बजट के बाद जब मैं आई थी, और उस समय के सरकार, क्योंकि बैंक अकाउंट्स में कुछ टेक्निकल कारण, किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, किसी के पास कुछ और नहीं है, किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है, उस कारण से बैंक अकाउंट में पैसा भरने का व्यवस्था टूट पड़ी। बैंक में अकाउंट खुला गया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, मगर उस अकाउंट में क्योंकि एक आध विषय का कमी थी, उसको उपयोग करने में दिक्कत पाया गया था। इसीलिए उस समय का चाय बगीचा धन पुरस्कार मेला, उसमें पैसा भरने का जो व्यवस्था उस समय था, उसमें कमियां थी, बहुत सारे लोग को छूट गए पैसा। मगर मैं जिस जोश से उस समय आदेश दिया बैंकों को कि ये सही नहीं है, आप सबको अकाउंट दोबारा ओपन करिए, और उसमें जो भी आइडेंटिटी के साथ विषय है वो सब ठीक करिए। ये सब उस समय एकदम का बार बार डिजिटल उपयोग करो, टेक्नोलॉजी उपयोग करो, इसके पीछे यही है रास यही है कि कोई बिचौली मजदूरों का पैसा से कुछ भी ना निकाले, पूरे के पूरे पैसा उनके पास जाना। इस बार के बजट के विषय जिक्र किया गया है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। प्रधानमंत्री जी का इच्छा था कि चाय बागान में कोई भी और कमी नहीं रहना चाहिए, आप जो भी करना है करना चाहिए। और असम सरकार से भी रिक्वेस्ट आया कि आप बजट के द्वारा हमें पैसा दो,
चाय बागान में काम करने वाले महिला और बच्चे के लिए हम कुछ काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए पैसा हमें बजट में घोषणा करो। इसीलिए आपके सरकार जो सर्बानंद जी सोनोवाल जी का, मुख्यमंत्री जी का और वित्त मंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा का रिक्वेस्ट था, उसको प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया और बजट में 1000 करोड़ का घोषणा चाय बागान के महिला असम और बंगाल में जो काम करते हैं उनके लिए घोषणा हुआ है। बैंक, असम सरकार और इस पैसा, इन तीनों को सही उपयोग करते हुए आप तक अच्छे सुविधा मिलेगा, ये मेरा पूरा आश्वासन है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा जो भी असम के लिए मिलना है, हक मिलना है, वो भी, और कभी कुछ आपदा हो जाता है उस समय भी जितना पैसा मिलना है भरपूर मिलेगा। अब तक मिल रही है, आने वाले दिन में भी जरूर मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी किसी भी एक राज्य को ऐसे छोड़ते नहीं है। सभी राज्य का डेवलपमेंट होना चाहिए, यही है भारत सरकार के इच्छा और नियति। आज इस चाय बागीचा धन पुरस्कार मेला में मुझे भाग लेने का मौका मिला, उसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद कहना चाहती हूं। कभी भी चाय बागान के बेहतरी के लिए, उन्नत के लिए जो भी काम करना है हम कटिबद्ध है, करेंगे, बिल्कुल आगे भी करेंगे। अभी भी वही वायदा मैं देती हूं आप सबको, और इस मौका में भाग लेने के लिए, इस अवसर में भाग लेने के लिए मुझे मौका मिला, इसके लिए आप सबको और मुख्यमंत्री जी को मैं प्रत्येक मेरा नमन बोलती हूं, धन्यवाद बोलती हूं। जय असम, जय भारत, नमस्कार। वादे नहीं इरादे लेके आए माननीय केंद्र वित्त मंत्री जी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अब हम আনুষ্ঠানিকভাৱে আজিৰ এই মঞ্চত আমাৰ মুখ্য অতিথিৰ হাতেৰে 6 গৰাকী হিতাধিকাৰীক এই ধন প্ৰদান কৰা হ'ব। I request our Honorable Union Finance Minister to kindly provide the checks. নাম ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে আগুৱাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনালো। আৰম্ভ কৰিছো কাছাৰ জিলাৰ ডালো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী শংকৰ ধুবি ডাঙৰ। কাছাৰ জিলাৰ ডালো চাহ বাগিচাৰ শংকৰ ধুবি ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া। নগাঁৱৰ আমচৈ চাহ বাগিচাৰ প্ৰেম কুমাৰ নায়ক ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে দৰঙৰ বৰগাৰা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী চামাৰু মুণ্ডা ডাঙৰীয়া। তাৰপিছতে চৰাইদেউৰ ডুমৰ দলং চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী ইনুত তাঁতী ডাঙৰীয়া। এয়া আছিল চৰাইদেউৰ। তাৰপিছতে কামৰূপ আমিন গাঁৱৰ ৰাণী চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী কালু মুৰাৰী ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ লেঙাৰজান চাহ বাগিচাৰ শ্ৰী নিৰল জজ ডাঙৰীয়া। I thank our chief guest for presenting the checks to our beneficiaries. आज हमने के बाबे एक ऐतिहासिक दिन सभी हिताधिकारी के शुभेच्छा जानाली। May I now humbly request Commissioner Secretary, Finance Department, Shri Shyam Jagannathan to kindly deliver the vote of thanks. খানাপাৰাৰ পৰা আমি পোনপটীয়াকৈ মুহূৰ্তত দেখুৱালো আৰু এয়া হিতাধিকাৰীসকলক 4 গৰাকীকৈ হিতাধিকাৰীক চেক প্ৰদান কৰাৰ মুহূৰ্ত
দেখুৱাই গ'লো আমি পোনপটীয়াকৈ আৰু বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ইতিমধ্যে জনালে ভাষণ প্ৰসংগত তেওঁ বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিলে চাহ বাগানৰ জনপ্ৰিয় গীত এটিৰ কথা য'ত যিখিনি অৰ্থ তাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে সেই অৰ্থখিনিয়ে তেওঁ গভীৰভাৱে চুই গৈছে বুলি তেওঁ জনালে তাৰোপৰি চাহ বাগানৰ বাবে চাহ শ্ৰমিকসকলৰ বাবে আৰু বহু কিবা কৰি যোৱাৰো এক প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁ প্ৰদান কৰিলে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়াকৈ আমি দেখুৱাইছোঁ সেই দৃশ্যসমূহ আৰু এয়া সভা এই মুহূৰ্ততে যিহেতু ভংগ হৈছে ৩,০০০ টকাকৈ চাহ শ্ৰমিকসকলক চেক প্ৰদান কৰা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলেও উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে